Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So starting with news analysis for 21st of January. So tomorrow we'll be having the inauguration of the Ram Temple. So this is, you can say, one of the models, how it would be looking specifically from outside and how the deities would be put inside the main sanctum sanctorium. So the Ram Mandir, crafted in gold, inspired by the Ram Mandir in Ayodhya, our masterpiece, stands as a beacon of faith and cultural resonance. So we've talked about several dimensions that we have covered regarding the Ram temple. Is yesterday we firstly compared about the architectural styles and the difference between Nagara style and the Dravida style. We talked about what are some of the unique features of the Ram temple, and it is not absolute Nagara style and neither Dravida style. So it's a mix of both. Then we've covered the dimension of what has been the importance and the function of temples in Indian society, apart from the religious significance in preserving our cultural practices and the traditions. So, importance of wetland, talking about simple definition. So, wetland is a land where we have, we can say, a sufficient quantity and volume of water is there, and it is, we can say, one of the important hotspots where we have huge amount of biodiversity and the number of species that we get. So from the perspective of species conservation, conservation of wetlands become important, and we also have Ramsar Convention, which is dedicatedly for the conservation preservation of the wetlands. So we can look for how many sites and the names and the states, their location, as far as the Ramsar sites in India is concerned. And Ramsar is a city in the country of Iran. So the name is from there. And here we can see that because of the climate change, even we are seeing the pattern of the migratory bird species is also getting impacted. So a month ago, we talked about that Siberian crane is almost, it is extinct in India because it is a migratory species. So we have not spotted the bird. So government is taking efforts to conserve, to enhance even the livelihood opportunities of local communities, because wetland also serve to be important tourist destinations. So from the perspective of that, livelihood opportunities are also connected with the wetlands. So ecologically sensitive wetlands, we talk about ecological sensitive zones, ESZ. So here we have ecologically sensitive wetlands also. So these are Ramsar sites. For example, here you can see the picture from Chilika Lake located in Odisha. And we have Sultanpur Bird Sanctuary in Haryana. 16 Ramsar sites ऐसी हैं अभी तक so far जो this recent initiative of conservation जो इसमें identify की गई है. So इस project के अंदर apart from the conservation, apart from ensuring कि tourist potential जो है that is retained, how we can train, how we can work upon the skill development of the facilitators, the service providers. So that's important, and you can just go through 5 wetlands: Sultanpur National Park, Haryana; Bhitarkanika mangroves in Odisha; Chilika Lake, Odisha; then Sirpur is in Madhya Pradesh, and Yashwant Sagar is in Madhya Pradesh. So the names and location is important, and the initiative would be under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So this is the Amrit Dharohar Capacity Building Scheme. So we'll be promoting nature tourism. So यहाँ पर tribal, मानसी the word is ecologically sensitive Ramsar site. तो it is ecologically sensitive. statutory तो statutory provision मिला है इसको कि ESZ just like ESZ different है. Statutory provision, I don't think so. यहाँ पे statutory provision मिला है.
दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम, अमृत धरोहर इनिशिएटिव जो है, तो उसके अंडर वी आर सीइंग कि ये सारी चीजें प्रमोट की जा रही हैं। हम्म। बाकी एक बार चेक कर लेंगे कि कोई अगेन एक्ट है देख लिया एक बार। ऐसा। हम्म। ठीक है, ट्राइबल लैंड स्कैम केस related to Jharkhand state. So ED is again involved in such cases, land scams or the cases related to corruption, money laundering also. So Enforcement Directorate and ED is an statutory body, Oshik, right? Statutory, है यस, ना? PMLA। And a PMLA Act. DRI जो होता है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी। Uh, Revenue Intelligence under Ministry of Finance. एंड हम लैंड ग्रैब को ऐसे भी डिस्क्राइब कर कि इट इज मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, तो ऐसा क्यों बोलते हैं हम, जैसे लैंड स्कैम केसेस जो होते हैं इंडिया में? We can say कि जो लैंड राइट्स होती है अगेन एक पार्ट ऑफ आपकी बेसिक राइट्स बोली जा सकती है, और स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि ट्राइबल लैंड का उसमें अगर स्कैम इज इन्वॉल्व, तो जो ट्राइबल राइट्स जो उनकी फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर वायलेटेड, इवन जो स्टैट्यूटरी राइट्स है जो एक्ट मेंशन करती है, तो विद दिस स्कैम वी कैन से कि लैंड से ही उनका सारा लाइवलीहुड, उनके कल्चर्स, ट्रेडिशन, वो सब कनेक्टेड रहते हैं। तो इफ लैंड वुड बी अगेन बोल सकते हैं इट वुड बी पार्ट ऑफ स्कैम, तो आई थिंक ये रीजन हो सकता है ऑफ सेइंग कि इट इज कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। So from Kaushalya's land, Ram Setu Sari unfolds the rare weave. So with the again Ram temple, we've talked about the cultural and traditional practices की बात करी, GI tagged products, then हमने handloom sector की बात करी, their importance of MSMEs and the Khadi Village Industries Commission. So with this we can say कि पूरा ecosystem, even जब हम pilgrimage tourism की भी बात करते हैं, livelihood opportunities को जो boost मिलेगा, demand increase होगी, all of that is connected to that. So Ram Setu Sari, you can see in the picture, and this is from we can say मतलब इस साड़ी के ऊपर ही जो राम सेतु ब्रिज है उसको डिपिक्ट किया गया है। सो ये अगेन एक आर्टिसनल स्किल्स हैं ऑफ द एमएसएमई वर्कर्स। सो दिस इज हैंड वोवन कॉटन यार्न, 5 months, इसको 5 महीने लगे बनाने में। नेचुरल डाइज फ्रॉम फ्लावर्स, जैगरी, ग्राम, आयरन, तो बिल्कुल ये जो इम्पोर्टेंट है हाँ यहाँ पर। प्रैक्टिस है। ही डिजाइन्ड द पीस इन द संबलपुरी बंद कला इक्कत, a technique in which the wrap and weft are tied and dyed before weave। संबलपुरी। संबलपुरी कहाँ होगा? उड़ीसा। हाँ तो वी कैन से कि हाँ ठीक है, स्टेट ऑफ उड़ीसा से है। और जगन्नाथ टेम्पल की हम बात करते हैं तो जगन्नाथ टेम्पल इन दिल्ली जो है। जो क्वेश्चन गलत पता है हाँ, अपना, कि इट कंसिस्ट ऑफ रथ यात्रा जो वुडन रथ है, और इवन द आइडल्स आल्सो मेड फ्रॉम वुड, नॉट स्टोन। ये मतलब रथ यात्रा निकलती सो जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, कौशल रीजन है उड़ीसा का, वहां से इट इज देयर। सो ये जो रीजन कौशल रीजन, इट इज बिलीव टू बी लैंड ऑफ कौशल्यास विच इज रामाज मदर। सो राम की मदर जो थी कौशल्या, इट इज बिलीव की शी वाज फ्रॉम दिस एरिया। So Agni Tirtham on the eastern beach of the temple witnessed special pujas. So Sri Ramatha Swami temple, which is in Rameshwaram. So eastern coast where this is located, and this is, I think it is in the state of Tamil Nadu. Yes.
हाइब्रिड मॉडल ऑफ लर्निंग फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। सो हाइब्रिड मॉडल में अगेन अपार्ट फ्रॉम जो एकेडमिक नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, वो तो इम्पार्ट की जाएगी। आई थिंक यहाँ पे वोकेशनल स्किल्स और स्पोर्ट्स सेक्टर को प्रमोट किया जाना चाहिए। और हाइब्रिड मॉडल, आई थिंक इसको हम बात कर सकते हैं जो यूजिंग द टैबलेट्स या टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, ऑनलाइन एंड जो ऑफलाइन मॉडल है उसका इंटरमिक्स होना चाहिए। तो ऑनलाइन स्कूलिंग टू द स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे भी फोकस किया जा रहा है। एंड यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो अगेन मेन करिकुलम भी है वो भी उसी लाइंस पे थोड़ा बहुत हम ट्रांसफॉर्म उसको कर सकते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी वो चीज़ एड करे। आपको सेपरेटली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के प्रिपेयर करने के लिए, गाइडेंस के लिए अगर आपको सेपरेट क्लासेस की जा रही है तो आई थिंक वो एडिशनल एक बर्डन क्रिएट हो जाता है। एंड यहाँ पे हम हाइब्रिड मॉडल से ये भी मीन कर सकते हैं कि हाइब्रिड मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों को हम दे रहे हैं हाँ। स्कूल्स में। Yesterday, we had a detailed discussion on one nation, one election, the positives and negatives, and again, the important role of the opposition in a democracy. So, Indian ये ले Coast, लो। हाँ, Indian Coast रोल ऑफ द कोस्ट गार्ड। evacuates the Indonesian national. तो again, maritime security में उनका role important है, and merchant ship was named Wave. So it was 90 kilometers south of Diu, तो Daman and Diu at the time. So it is an Indian territory, and C-149 is the ship of the Indian Coast Guard. So news on medical emergency on board was diverted to evacuate the patient. Mansi, we're discussing about the territorial limit that is around 12 nautical mile and EEZ is around 200 nautical mile, right? Yes, yes. तो यहाँ पर तो इंडियन कोस्ट का 90 किलोमीटर बाद में दूर गया है, तो हाँ वो इंडियन टेरिटरी तो है नहीं। नहीं, 90 किलोमीटर्स है ना। नॉटिकल माइल्स और किलोमीटर को कन्वर्ट करोगे तो कितना किलोमीटर आएगा? 12 नॉटिकल माइल्स इनटू किलोमीटर, वो तो नॉटिकल माइल्स। अप्रोक्सीमेटली। तो हाँ, फिर कितना हुआ? 24। ट्वेंटी तो फोर जब, हाँ, तो जो जो अपने कोस्ट गार्ड होते हैं, दे ऑपरेट ऑल्सो विद इन द EEZ बाउंड्री, और EEZ बाउंड्री के बाद में इनका ऑपरेशन मोस्टली नहीं रहता है, इट इज गिवन टू द इंडियन नेवी। इसलिए जब बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी गार्जियन और फिर दूर में जो एंटी पायरेसी मेथड दैट इज बीइंग एम्प्लॉयड बाय द इंडियन नेवी, नेवी। उसमें इंडियन नेवी, ये हाँ, कोस्ट गार्ड रहती है क्योंकि कोस्ट गार्ड, हाँ। जस्ट आप ठीक है, हाँ ये तो ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन थी, मेडिकल इमरजेंसी, तो इट वाज और अलाउड। सामने थे ना कोस्ट, हाँ, कोस्ट इसलिए नाम। टेरिटोरियल वाटर्स के विद इन दे हैव द अथॉरिटी। सो सैंडलवुड की हम बात कर सकते हैं। वी लाइक दीज आर एंडेमिक, आई थिंक वी कैन यूज दिस वर्ड, एंडेमिक टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भी कौन से स्टेट्स? आई थिंक आंध्र प्रदेश इज देयर एंड तेलंगाना, जहाँ पे सबसे ज्यादा हमें मिलता है, एंड कर्नाटका। फैक्ट्री सेलिंग फेक मैसूर सैंडल सोप। सो आई थिंक ये GI टैग प्रोडक्ट होना चाहिए। यस, हम्म। हाई क्वालिटी सैंडल ऑयल, और काउंटरफिट करते हैं, दे लैक हाई क्वालिटी, और फिर दे आर हैविंग हेवी मेटल्स। हाँ, एंड अगर हम इंडियन सैंडलवुड की बात करते हैं तो IUCN स्टेटस उसका क्या है? सैंडलवुड का IUCN स्टेटस बोल रहे हो आप? हाँ जी। तो सैंडलवुड का IUCN स्टेटस, इंडेंजर हो सकता है, हाँ चेक करना हो पड़ेगा। सकता है। हाँ वो हो सकता है वैसे। नहीं नहीं, नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड, ठीक है। रेड सैंडर जो है, इनको मिला इंडेंजर।
रेड सैंडर तो यही है ना, रेड सैंडर, सैंडलवुड नेटिव तो एंडेमिक टू इंडिया, वो इंडेंजर स्पीसी है, तो यही हो। हाँ मतलब सैंडलवुड में भी एक ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज होगी, रेड सैंडलवुड। वो हाँ, रेड सैंडलवुड ये इंडेंजर हो गई, और जो इंडियन सैंडलवुड है ये वाले नियरली थ्रेटेड है। हाँ नियर हाँ टू। जी, तो इसका इंडियन मतलब कि सैंडलवुड वल्नरेबल है, वल्नरेबल। वर्नेबल, हाँ, हो सकता है। वल्नरेबल को इसका स्टेटस है। इंडियन सैंडलवुड का। हाँ, उसके अंदर स्पीसीज जो आ गया रेड सैंडलवुड, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर हाई डिमांड है, वो इंडेंजर्ड है। ठीक है। शॉर्टेज ऑफ एलिफेंट्स पुशेस देयर रेंट अप इन केरला। तो हम बात करते हैं फेस्टिवल्स और जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है विच आर कनेक्टेड विद द एनिमल्स आल्सो, तो लाइक जल्लीकट्टू, कबाला की हमने बात करी, कॉक फाइट्स की हमने बात करी, एंड एलिफेंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ एलिफेंट्स डिमांड ज़्यादा कंपैरेटिवली, एंड अभी फेस्टिवल सीजन भी, तो द प्राइसेस गो अप, जो रेंट प्राइसेस हैं। सो सेलिब्रिटी स्टेटस ऑफ एन एलिफेंट, सम ऑफ द बॉडी ट्रेड्स जो एलिफेंट्स के ऐसे होते हैं कि वो हम बोल सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट एलिफेंट स्पीशीज जो अवेलेबल है मार्केट में, तो दैट इज द रोल ऑफ पेटा, PETA India. They've called for ending the use of captive elephants in festivals for the sake of health of both elephants and humans. So animal rights group is PETA. एलिफेंट इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास है, 40-30,000 के आसपास, एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन द सदर्न रीजन, केरला, कर्नाटका। सेकंड इम्पोर्टेंट है डिफरेंट, इंडिया में जो एलिफेंट है दे आर इंडेंजर स्पीसीज, IUCN एलिफेंट। एशियन एलिफेंट्स बोलेंगे ना हम इंडिया में जो स्पीशीज। हाँ, इंडिया में, हाँ। ठीक है। तो रामेश्वर टेम्पल तमिलनाडु बात कर चुके हैं हम, एंड रामेश्वर अगेन एक इम्पोर्टेंट लोकेशन भी है। सो इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ former president also, APJ Abdul Kalam. So Koli Dam, river bank. So this is a fact which is close to this temple also. You can take it down. इंडिया म्यांमार बॉर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, सो हमने बात करी कल भी ये टॉपिक लिया कि जो फ्री मूवमेंट रिजीम है, जो इंडिया और म्यांमार बॉर्डर, कौन सी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। सो फ्री मूवमेंट रिजीम अलाउ करता है जो बोथ द साइड बॉर्डर एरियाज में जो ट्राइब्स रहते हैं, 16 किलोमीटर तक दे कैन क्रॉस द बॉर्डर विदाउट एनी वीजा। सो इसका मिसयूज भी कहीं ना कहीं किया गया फॉर द मूवमेंट ऑफ द मिलिटेंट्स, फॉर ड्रग स्मगलिंग एंड ऑल्सो फॉर इलीगल स्मगलिंग ऑफ द आर्म्स ऑल्सो। सो इंडिया का जो टोटल बॉर्डर है विद म्यांमार, 1643 किलोमीटर बॉर्डर वी शेयर, एंड हमने 2018 में फ्री मूवमेंट रिजीम को इम्प्लीमेंट किया था, एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हम इसको विड्रॉ करने वाले, सो दिस वुड बी स्क्रैप्ड। सो एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसको लाया गया था। तो 16 किलोमीटर सब मेंशन्ड है इधर। एंड जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, तो दैट इज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। जब हम बात करते हैं कि इंडिया का सबसे ज्यादा बॉर्डर हम कौन सी कंट्री के साथ शेयर करते हैं, तो दैट इज बांग्लादेश। उसके बाद वी हैव चाइना। So much of India's 4,096 kilometer border with Bangladesh, it has been double fenced to stop the unauthorized entry of the people into the Indian territory. तो it was again believed कि जो main challenges अगर हम बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के भी, तो it is cattle smuggling and movement of the illegal migrants on specifically after the 1971 Indo-Bangladesh war। इसीलिए आसाम अकॉर्ड भी किया गया था जिसमें अगेन जो डेट सेट की गई थी कि आफ्टर 1971 जो वॉर एंड हुआ उसके बाद जो इलीगल माइग्रेंट्स हुए, दे वुडंट बी गिवन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो CAA आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस, वी कैन से सॉफ्ट प्रोविजंस थे फॉर द इलीगल माइग्रेंट्स हु माइग्रेटेड आफ्टर 1971, कि उनको इतने ड्यूरेशन के लिए अगर वो रहें तो सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो उसके अराउंड पूरा प्रोटेस्ट हुआ था। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं
और बॉर्डर आउटपोस्ट जो है म्यांमार बॉर्डर के अलोंग होनी चाहिए। तो कंपैरेटिवली हमारी सिक्योरिटी अगर हम कंपेयर करें अलोंग म्यांमार एंड बांग्लादेश, तो इट इज वी कैन से कि म्यांमार के अराउंड इतना ज़्यादा सिक्योर बॉर्डर नहीं है कंपैरेटिवली। एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इज गार्डेड बाय बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एंड इंडिया म्यांमार बॉर्डर बाय असम राइफल्स। सो असम राइफल्स का रोल जो मिलिटेंसी भी है, ये भी बोला जाता है कि उनका रोल वो ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इन कंटेनिंग डाउन द इंसर्जेंसी और जो मिलिटेंसी देखी जाती है इन डिफरेंट स्टेट्स रादर देन गार्डिंग द बॉर्डर। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द सजेशंस की बीएसएफ को ही म्यांमार बॉर्डर के अलोंग डिप्लॉय कर देना चाहिए। तो एसएसपी के अंडर वी हैव 100% नक्सल फ्री। सो ही वाज एड्रेसिंग दिस सशस्त्र सीमा बल नॉर्थ सेंट्रल असम स्टेज पर डिस्ट्रिक्ट। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और जो गोल्ड स्मगलिंग होती है उसके रिगार्डिंग भी म्यांमार के वहाँ इशू देखने के लिए मिलते हैं। और जैसे हम कुकी और जो देखते हैं वो सिंगल ट्राइब नहीं, उसमें चिन भी आते हैं, ग्रुप ऑफ ट्राइब्स है, तो वो म्यांमार से ही शिफ्ट हुए थे, वहां पर माइग्रेंट हुए थे। यस, इसीलिए फ्री मूवमेंट रजीम हम लेके आए थे 2018 में। सीमा सुरक्षा बल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मानसी, आई थिंक ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर होना चाहिए, नहीं होम के अंदर होना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी के कंसर्न में तो होम ठीक, हाँ, अफेयर्स के ट्रू। अंदर। सो ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोग्राम 15 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा फॉर दी स्किलिंग द पर्सनल जो स्टेक होल्डर्स हैं इन्वॉल्व इन दी वेटलैंड टूरिज्म। और बाकी हम रामसर साइट्स इसमें यहाँ जो मेंशन है कवर कर चुके हैं। सो बोट सर्टिफिकेशन दिया जाएगा टूरिज्म। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि बोट कैप्साइजिंग की वजह से जो टूरिस्ट हैं प्रोग्राम हम्म 12 चिल्ड्रन डाइड। हाँ, सो बोट सर्टिफिकेशन फॉर टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है विच नीड्स टू बी इंश्योर्ड। तो इवन स्किल्स आपके पास होंगे अगर ऐसा कोई डिजास्टर भी होता है, हाउ यू विल बी टैकलिंग दैट सिचुएशन, तो इसलिए स्किल्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हाई वैल्यू वर्सेस द नेचर, तो इसमें अगर हम बात करें हाई वैल्यू ट्रैवलर्स की बात की जा रही है वर्सेस द नेचर। तो जो नेचुरल अट्रैक्शंस हैं एरिया की लाइक बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी, स्टार गेजिंग, कैंपिंग और भी जो यहाँ मेंशन्ड है, तो उसकी बात की जा रही है। सो दीज आर एक्सपीरियन एक्सपीरियंशियल टूरिस्ट होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं इन डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल कल्चरल रिसोर्सेज। और जब हाई वैल्यू ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट की भी बात करते हैं तो they do not cause any kind of harm to the species which are we can say spot there। तो सस्टेनेबल टूरिज्म में भी हाई वैल्यू ट्रैवलर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इवन जब हम बात करते हैं गोवा की भी, तो गोवा में भी ये एक पार्ट ऑफ डिबेट रहा है कि हाई वैल्यू ट्रैवलर्स और जो टूरिस्ट हैं वो गोवा उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहता है बिकॉज ऑफ अगेन सस्टेनेबल टूरिज्म को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए। सो ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वेटलैंड्स। एंड इवन जब हम बात करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड होता है इन वेटलैंड्स, तो इवन दैट इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें औषध, अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता सकते हो कि कार्बन रिस्टोरेशन के लिए वेटलैंड्स में सबसे ज़्यादा होता है कि जो फॉरेस्ट में ज़्यादा होता है ऑन कंपेयरिंग, एंड देन ओशंस में जो होता है। तो ये तीन हमें पता होना चाहिए ऑन कंपैरिजन किस में ज़्यादा होता है। वेटलैंड, फॉरेस्ट, ओशन होना चाहिए हाँ, मेरे हिसाब से अगर। ये। हाँ, लेकिन एक और एक था प्रीलिम्स में पूछा था कि वेटलैंड इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ मीथेन। हाँ ये ट्रू है। ट्रू है ये। और हाँ, सेकंड क्वेश्चन था कि किडनी, वेटलैंड एक्ट्स एज अ किडनी रिकॉर्ड। तो ये भी हाँ 2022 में फिल्टर। पूछा था। हाँ 22। तो डू दे एक्ट एज लाइक जो फंक्शन होता है किडनी का, फिल्टर्स करते हैं वो। हाँ, यस, प्रूव। वेटलैंड फिल्टर्स द मिनरल्स एंड जो भी ठीक। मेटल्स रहते हैं उनको, वैसे किडनी ऐसे काम करते हैं वैसे ही हाँ। वेट फॉर द नेचर। हाँ तो जैसे इम्पोर्टेंट वेटलैंड से रिलेटेड है वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल। ये आया था ईपीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। जैसे हम लोग बात करते हैं CRZ, कोस्टल रेगुलेशन जोन, हर एक के लिए स्पेसिफिक रूल्स
एंड रेगुलेशन है फॉर ईच टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। जब फॉरेस्ट की बात करते हैं और फिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा, दैट इज ESZ, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। इट इज अंडर EPA एक्ट 1986। वैसे ही बाकी जो नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दे आर established under WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। CRZ 2011 में एक्ट है, उसके अंदर में कोस्टल रेगुलेशन जोन के लिए वेटलैंड रूल्स आया 2017 में फॉर द रेगुलेशन ऑफ द एक्टिविटीज इन द वेटलैंड जोन। और ये है एक्ट EPA के अंदर में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में। तो हर एक के लिए अलग है, तो इसको आप लिख सकते हो। कवर में कर, इसको डिटेल में करें इन्वायरमेंट। हाँ, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एसेट्स डिक्लेरेशन इवन अंडर RTI एक्ट जो है, तो जजेस आर देयर, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कवर्ड अंडर RTI एक्ट। सो वॉलंटरी डिक्लेरेशंस देखी जाती है ऑन द पार्ट ऑफ द जजेस, जो वेबसाइट्स होती है वहाँ पे दे डिक्लेयर। बट ये देखा जा रहा है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, they also declare the assets in accordance with code of conduct for the ministers, which is issued by Ministry of Home Affairs. So इसको हम ethics का एक important part ले सकते हैं in terms of promoting transparency, and also इसको एक बोल सकते हैं this is one of the steps of even curbing the criminalization of politics also. So judiciary में भी देखा जा रहा है, पे mention है कि only 7 declare apart from Delhi High Court. These are the states out of the 25 in the country that have sitting judges declare their assets on their respective websites. So क्या इस चीज के लिए भी लॉ लेके आने की जरूरत है कि नहीं है? तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी इंटाइटल्ड जुडिशियल प्रोसेसेस एंड देयर रिफॉर्म। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट शुड ब्रिंग अबाउट एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन to make it mandatory for the judges of the higher judiciary, Supreme Court, and the high courts to furnish their property returns on annual basis, and what is their appropriate authority. And जो अगर हम सैलरीज की बात करते हैं, सैलरीज एंड द सर्विस कंडीशन सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस की, तो दे आर ऑन सिमिलर सैलरी स्केल जो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। तो दिस इज देयर। सो इवन बाकी अथॉरिटीज की हम बात करें तो लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जितनी भी इंक्लूडिंग दी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, they're also uploading latest asset declarations on the websites under their code of ethics. So हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि even declaration of asset forms a part of code of conduct and code of ethics. So another NGO, World Vision India, it loses the FCRA registration. So Foreign Contribution Regulation Act for regulating the funding and the usage of the funds which is received by the NGO and the civil society organizations. So their registration is also being cancelled. World's largest Christian voluntary groups with a presence of over 100 countries. So दिस इज व्हाट वर्ल्ड विजन इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, एंड दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। FCRA रेगुलेशंस जो रूल्स हैं, तो इज बिलीव्ड कि जो इंडियन एनजीओ इज नो लॉन्गर एलिजिबल टू रिसीव फॉरेन डोनेशंस इंक्लूडिंग फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो टू रिसीव नॉन कंप्लायंस के लिए किया गया। नॉन कंप्लाइंट कंडक्ट सोशल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए उनकी मेन जो डोमेन एरियाज अगर बात करें, तो बाकी एग्जांपल्स तो हम देखे अभी। हाँ 4-5 एग्जांपल हो गया अभी तक में रिगार्डिंग द FCRA रजिस्ट्रेशन। एमनेस्टी इंटरनेशनल, फिर जाकिर नायक फाउंडेशन, फिर वर्ल्ड विजन इंडिया अभी के लिए, और 2 एक और था जो हाल फिलहाल है। CPR, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, CPR का एक और एक था, देख लेंगे उसको एक बार, ठीक है। वही बेल जाना बनना। बेल प्लीज की बात करते तो दीज आर इसमें जो रिफॉर्म्स की बात करते हो दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द प्रेजेंट रिफॉर्म्स इन इंडिया। सो दे जो बेल प्लीज हैं उनमें डिटेल होनी चाहिए ऑफ द ऑर्डर्स पास्ड अर्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगेन जो डिलेड बेल दी जाती है, so that is one of the issues that needs to be resolved. So
इवन आफ्टर गिविंग द ऑर्डर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम लैग होता है. So that also somewhere we can say violates the human rights of the prisoners. So consistent effort by litigants to misrepresent the court. So judges, the judgment said, now a litigant can go to any extent to mislead the court. They have no respect for the truth. The truth constituted integral part of the justice delivery system. So post-independence period, we see drastic changes in the value system. Those involved in litigation do not hesitate to take shelter of falsehood, misrepresentation, suppression of facts in the court proceedings. So intentional suppression किया जाता है of the facts, the actual true facts हैं. So now it is made mandatory कि bail please में सारी details, सारी copies mentioned होनी चाहिए जो पहले के orders रहे हैं. So even जो status है pending bail applications का. So this adds to one of the reforms in prison reforms. Break of new dawn in Ayodhya, 22nd January. Sanatan culture promotion and regaining the lost glory. Amravati of Avani. अयोध्या इसको पहले मतलब ऐसे बोला एड्रेस किया जाता था. वैकुंठ ऑफ द अर्थ remained cursed for centuries. So राम राज्य की हम बात करते हैं. Ideal concept. Lord Ram had to prove his existence and evidence was sought for his birthplace. So कौन सी हम बोले अगर values की बात की जाए तो patience and perseverance with their resolve growing stronger with each passing day. Devotees of Ram. So even this also reflects convergence of diverse spiritual traditions. So Shaivism, Vaishnavism, Shakta, and Patya, Sikh, Buddhist, Jain, all of that. So this is, we can say, example of unity and diversity. It reflects that. Different school of thoughts, sects, worship methods, traditions, 150 traditions, 50 communities coming from different geographical regions, tribal groups. So it reflects a mini India, we can say. और बाकी जो हमने कल areas discuss करे, that I've mentioned in the beginning. Today's session, cultural heritage, also poised to boost tourism, foster cultural promotion. Thirdly, generate new employment opportunities. So अगर हम security situation की बात करें तो using drone surveillance, 51 parking spots, they have उसमें been. एक मानसी 2 हफ्ते पहले with regarding to speed development of Ayodhya, bill grids urbanization keyword Bill grids infrastructure development. Hmm. और कल हमने एक और 20 की देखा था crores have been pumped in for the development of the Ayodhya for making it a pilgrimage site in India. Airport, roads, railway station, etc. for the Yes. public amenities. और कल हमने एक और कीवर्ड देखा था, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट्स इन उत्तर प्रदेश. So advisory for media has also been issued ahead of the ceremony. So it is important कि जो unverified information है, कोई ऐसी information which is provocative and fake messages that shouldn't be spread on social media also, and even जो TV media है, so which can disturb communal harmony and public order. So coming from the Ministry of Home Affairs, it is from Broadcasting Ministry, Information Broadcasting Ministry they have issued. So यहाँ पे भी the program code under the Cable Television Networks Regulation Act, norms of journalistic conduct laid down the Press Council of India under the Press Council Act. So Press Council of India is a statutory body, we can say. So a reference also IT Act 2000, जो Information Technology Act 2000, that is also important.
So our Union External Affairs Minister holds talks with the Bangladesh Foreign Minister Mohammed Hassan Mahmood in the Uganda's capital of Kampala. The capital of Uganda is Kampala. Hailed bilateral relationships that are growing from strength to strength. Recently, we saw Prime Minister elections हुए हैं बांग्लादेश में, and again Sheikh Hasina, she comes to power, and so non-aligned movement summit is going to be there. तो नॉन अलाइनमेंट की हम बात करते हैं तो दिस रिफ्लेक्ट्स नॉन अलाइनमेंट. वी आर नॉट अलाइंड विद एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और द आइडियाज ऑफ any world power, we can say. So India supports this non-alignment since independence. So we जो यहाँ अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो जो हमारा डिप्लोमेटिक स्टैंड रहता है हमेशा, वी ट्राई टू इंश्योर कि इट इज बैलेंस्ड इन नेचर, इट इज नॉट extreme or it is not one-sided. So maintaining India's security and integrity, sovereignty, this is, we can say, the primary thing even in our foreign policy. बट क्या अभी के जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग नाम रेलेवेंट है इंडिया के लिए? We can say yes, it is relevant, जो कि रिफ्लेक्ट भी हो रहा है अभी जो हमारा, अगर हम स्टांस की बात करते हैं